My dear students, it is long that we are, after a long time, we are into this recorded lectures or online classes. So far, I've been taking the classes in Zoom app, and now I have planned that I should go for recorded videos. Anyway, instead of making the video lengthy, I'll make the video short, just for 25 to 30 minutes long. Okay, so that you can download the video easily. And one more thing, today, okay, we'll take the topic gaseous state, that is states of matter. Okay. So coming to gaseous state, states of matter. Gaseous state. First of all, we'll take the properties of gases. Properties of gases. अपना जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ, इट इज नथिंग बट एक्सपेंसिबिलिटी. देखना, gases can have limitless expansibility. They can expand from any distance to any area to any volume like this. अगर अपना गैस यहाँ पे रखें, ये पता नहीं कहाँ कहाँ फैलता है. ठीक है. This indicate gases can have limitless expansibility, unlimited expansibility है. Gases can have limitless expansibility. Limitless expansibility. Next, अपना second property हुआ compressibility. Can you compress a gas? Yes. But can you compress a gas molecule? No. अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई गैस रहता है, you know, between two gas molecule there is intermolecular space are there. तो ये जो आपने intermolecular space की वजह, due to intermolecular space gap we can compress a gas. But can you compress solid? No. It is because in the case of solid there is no intermolecular space, ये gap नहीं रहता है, close packing रहता है. So we cannot compress a solid, but we can compress a gas. And liquids का जो compressibility रहता है gases से कम है, solid से ज़्यादा रहता है. And do remember, a gas can be compressed, but not a gas molecule. If I take one particular molecule, can I compress the molecule? No, I cannot compress a particular gas molecule.
I cannot compress a molecule because ये जो gas molecule है, the gas molecule is taken to be a solid thick sphere. इस solid sphere मानते हैं that is the point why we cannot compress this. We cannot compress a gas molecule, but we can compress a gas. A point बहुत important है. Therefore here we can say that gas can be compressed. Gas can be compressed due to the presence of intermolecular space. But you cannot compress a gas molecule. We cannot compress a gas molecule. नेक्स्ट अपना जो अगला प्रॉपर्टी हुआ, अपना अगला प्रॉपर्टी होता है डिफ्यूजन. See, what is the meaning of diffusion? So it is nothing but spreading of gas, and this may be called intermixing of gases. अगर अपने पास फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई गैस है, हमने यहाँ पे O2 गैस रखा है, या हम लोग यहाँ के N2 गैस रखा है, फिर आपको ऐसा लगता है क्या N2 गैस यहीं पे रुकेगा, O2 गैस यहीं रुकता है क्या? नहीं, they बिल्कुल intermix. They are going to intermix properly. O2 may come here, N2 may go here. They form uniform gas mixture. But इतना ध्यान रखना है कि जिस गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कम है, जिस गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन रहता है. जिस गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रहता है, और जिसका अपना मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका अपना बिल्कुल ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है. तो इसका अपना मीनिंग होता है, इसका लेस रेट ऑफ डिफ्यूजन है और इसका मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28 है. Therefore we can say that जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है. तो डिफ्यूजन का मीनिंग अपना हो गया. So coming to our diffusion, it is nothing but intermixing of gases and this may be called spreading of gases. इस हम लोग क्या बोलते हैं? It is called spreading of gases. Next, what is the meaning of effusion? Now, what is effusion? Effusion का मीनिंग हुआ, अगर आपके पास कोई बैलून फुल ऑफ गैस है, हमने बैलून में गैस भरा है, ये अपना फॉर एग्जांपल गैस है, इट्स अ बैलून. ठीक है. Now, if I make a small hole, now from the small hole the gas is going to come out with high internal pressure. अगर लिक्विड होता इतना फास्ट नहीं आ सकता है, अगर सॉलिड हो इतना फास्ट नहीं आ सकता है. Only for the case of gases, due to high internal pressure,
the gas is going to come out from small hole with high pressure, फुस के बाहर आता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्यूजन बोलते हैं. अगर अपना साइकिल ट्यूब पंचर होता है, okay, on that particular case the gas is going to come out with high speed, and that is what you call effusion. Therefore, coming to a balloon full of gas, if I make a small hole, then the gas is going to come out with high pressure, high internal pressure, and that is the meaning of effusion. Again ध्यान रखना है कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो जल्दी एफ्यूज होता है, क्योंकि आदमी अगर पतला होगा, आदमी मोटा है तो भागता कम है, आदमी पतला है तो भागता ज्यादा है. अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसका ज्यादा रेट ऑफ एफ्यूजन होगा. So like diffusion and effusion, both having same property. It may be diffusion, it may be effusion. जिस गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसका ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, अकॉर्डिंगली इसका ज्यादा रेट ऑफ एफ्यूजन भी होता है. Therefore here we can say that so effusion का मीनिंग होता है the property of gas to come out from small hole, come out from small hole with high pressure, इस हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्यूजन बोलते हैं. एंड ध्यान रखना है कि लेट R इक्वल्स टू R अपना हुआ रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन. एंड ध्यान रखो, डू रिमेंबर दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन rate of diffusion kimba effusion inversely proportional to the square root of molecular weight of the gas. What is MW? Molecular weight of the gas, keeping your temperature of gas and pressure of gas constant. याद रखें टेम्परेचर प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट है. Now these are the main properties of the gases. Okay. अब हम लोग क्या करेंगे, before going into the gas laws, and I will explain the something called log, anti-log, methods of plotting graph. From there you can plot the graphs of your gaseous state, because when it is coming to questions of gaseous state, they're basically graphs you are going to ask. हमें ज़्यादा क्वेश्चन ग्राफ से मिलता है, so it's my intention that I will teach you the methods of plotting graph, and then we can go for your gas laws. ठीक है, right. पहले हम देखेंगे, first of all we will see logarithms.
ठीक है। Actually, what is log? Log is a mathematical operator which operate two values simultaneously. Log क्या होता है? Log is a mathematical operator which operate two values simultaneously. A and B. A is the base, and necessarily both should be positive. Next, we are having something called, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस A. ये अपना मेन वैल्यू है. Next, we are having something called ln x. ये ln का मीनिंग क्या होता है? नेचुरल लॉग है. ln का मीनिंग क्या है? नेचुरल लॉग. एंड ln का मीनिंग हो गया लॉग बेस e. बट व्हाट इज e? ये अपना होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? e इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और e का जो वैल्यू होगा, e का वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3. अगर हमें लॉग बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, then you have to multiply by something called 2.303 से मल्टीप्लाई करो, so that we can convert base e into base 10. ठीक है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं केवल log x लिखा है, इतना ही लिखा है, आपको यहाँ पे बेस 10 समझना ही पड़ता है. और 10 लिखो कि नहीं लिखो, आपको बेस 10 समझना ही पड़ता है. ठीक है. It is so for chemistry, and all chemistry authors are concerned, all chemistry books are concerned. I don't know about physics and all. So far chemistry authors are concerned, chemistry books are concerned, chemistry questions are concerned. अगर मैं log ऐसे लिखा है तो आपको समझना कि log base 10 है. ठीक है. Next, अगर अपने पास log a into b है, मतलब बेस कितना? बेस अपना 10 है, इनटू है, इसको एडिशन करना पड़ता है. नेक्स्ट, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल log a प्लस b है, यहां बच्चे लोग क्या करते हैं बताओ? क्या log a into b करते हैं, और ये गलत होता है. ध्यान रखो, इसके लिए कोई एक्सपेंशन, इसके लिए कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है. कोई फॉर्मूला नहीं है. बेस कितना? बेस 10, बेस 10 है, राइट. अगर log a by b रहता है, बेस 10 है, ये अपना होता है log a माइनस कितना होता है? माइनस log b होता है. मतलब बेस कितना? बेस 10, बेस 10 होता है. ओके. नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली अगर आपके पास log a पावर b होगा, तो ये दोनों अलग है, या बेस 10 है, b को आप मल्टीप्लाई करना पड़ता है. बेस 10, बेस 10, यहां पे बेस a है. These two are different. कंपैरिजन कर लो, यहां पे बेस a is right,
नेक्स्ट अकॉर्डिंगली अगर अपने पास अगर log बेस a b इक्वल अगर c होता है, then I can say that b equal to a power c होगा. ठीक है. नेक्स्ट अगर अपने पास फॉर एग्जांपल 10 रेज्ड पावर log x है, मैं यहां पे जितना रेज्ड पावर किया है उतना यहां पे बेस है, इसका वैल्यू कितना होता है x होता है. अकॉर्डिंगली अगर अपने पास फॉर एग्जांपल e रेज्ड पावर ln x है, इट इज नथिंग बट e रेज्ड पावर ln का मीनिंग क्या, log बेस x. तो मैंने यहां पर जितना रेज्ड पावर किया उतना ही बेस है. अगर दोनों इक्वल होते हैं अपना वैल्यू कितना होता है, x होता है. वैल्यू कितना होता है, x होता है. फॉर एग्जांपल यहां पे जितना बेस है अगर उतना ही वैल्यू रहता है, इसका वैल्यू कितना मतलब 1 है. आप सभी को पता है log 10 का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज log 10? log 10 इक्वल टू 1 है. log 10 कितना होता है, log 10 अपना 1 होता है. तो जितना कितना बेस है, बेस अपना 10 होता है. अगर दोनों सेम है तो अपना 1 हो जाएगा. ठीक है. दिस आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ log. अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको log का क्वेश्चन सॉल्व करना है, you need to remember log 1 to 10 values. Okay, जब आपको log 1 to 10 values याद रखते हैं, you can solve the questions of log and anti-log without seeing your log anti-log tables. अगर आप देखेंगे जो आपका केमिस्ट्री का बुक के पीछे कि फिजिक्स का बुक के पीछे आपको log anti-log ओके tan टेबल साइन टेबल सब रहता है, without seeing the log anti-log table you can solve all the questions by knowing all these properties and log 1 to 10 values. इस जगह आपको याद रखना पड़ता है. प्लीज टेक केयर. राइट. ये अपना प्रॉपर्टी 9 हुआ. कमिंग टू प्रॉपर्टी 10, अगर log a by b is there, इसको रेसिप्रोकेट करो, सामने माइनस आता है. सामने क्या आएगा, माइनस. या कितना बेस है, 10. या कितने बेस है, 10. नेक्स्ट कमिंग टू प्रॉपर्टी 11. 11 में आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है. 11 क्या है, यू नीड टू रिमेंबर द फॉलोइंग वैल्यूज. याद रखना पड़ता है आपको. log 1 कितना है, 0 है. बेस कितना, बेस 10 है. log 2 कितना है, 0.3010. log 3 कितना है, 0.4771. ये घंटे नियरली कितना लेते हैं बताओ, नियरली घंटे 0.5. ठीक है. log 4 कितना होता है, log 4 हमको मिलेगा 0.6020 मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट अकॉर्डिंगली log 5 कितना होता है,
0.6990 होता है। नियरली कितना करेंगे 0.7 करो। log 6 कितना होता है, इससे थोड़ा ज्यादा होता है, 0.77 होता है। log 7 कितना होता है, इससे थोड़ा ज्यादा 0.87। log 8 इससे थोड़ा ज्यादा, ये हमको मिलेगा 0.9030 मिलता है। log 9 इससे ज्यादा है, हमको log 9 मिलेगा 0.94 मिलता है। log 10 कितना होता है, log 10 अपना 1 बिकॉज बेस 10 है, बेस कितना बेस इज 10, दोनों इक्वल है, 1 हो जाता है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ता है, कौन सा बताओ आपको। 1 याद रखना, 2 याद रखना, 3 याद रखना पड़ेगा, 5 याद रखो, 7 याद रखो, बाकी अपना जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें log 4 चाहिए, मतलब log 4 कितना होता है, log 4 का था अपना log 2 raised to power 2, log a power b, एंड log a power b कहा तो b मल्टीप्लाई करना, a power b तो 2 log 2 होता है। आपको log 2 तो याद है, तो कितना होता है 2 into 0.3010, हमें कितना मिलेगा 0.6020 मिलता है। ये देखो log 4 अपना 6020। ठीक है, अगर आपको log 6 चाहिए, 6 हम लोग कैसे निकालें, log 6 कहा तो it is nothing but your product of log 2 into 3, हमें कितना मिलता होता है log 2 plus log 3 मिलेगा। आपको ये याद रखो, ये भी याद रखने के लिए बोला था मैंने, ये 3010 हो गया, ये 0.4771 है, तो नियरली कितना मतलब 0.77 आता है। देखो log 6 अपना 0.77 है। ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर हमें log 7 तो आपको याद रखने के लिए बोला मैंने, log 8 निकालेंगे। See what is log 8? log 8 क्या होता है, देखो what is 8 to power 3, ये अपना log a power b हो गया, एंड log a power b का तो b log a, 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 इंटू कितना करेंगे 0.3010 करो, ये हमको कितना मिलेगा 0.9030 मिलता है। देखो ये वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे log 9। देखो log 9, कमिंग टू log 9, व्हाट यू डू, log 9 ये हमको मिलेगा log 3 पावर 2 मिलता है, log a पावर b, log 3 कितना अपना, log 3 अपना 0.4771 है, ये हमें कितना मिलेगा 0.95 मिलता है, सो 95 कर दो। ठीक है, ये अपना हो गया log। अगर आपको log 1 to 10 वैल्यूज पता है, अगर आपको log 1 to 10 वैल्यूज पता है, इसको रटना पड़ता है आपको, get it by habit, then you can solve any questions of log very comfortably. Okay, next अब हम देखेंगे
क्वेश्चंस। अपना क्वेश्चंस हुआ, अपना क्वेश्चन हो गया फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग। If I need to find, for example, log 0, not valid. Log always applicable to positive values. Log always applicable to positive values. I say, for example, log -1, not valid. Valid हो तो नहीं. Next, if I need to find, for example, log 100, nothing but क्या करेंगे बताओ, log 10 power 2, log a power b कहा तो b log है। log 10 कितना मैंने आपको बताया था। इस नंबर को ऐसा स्प्लिट करो, हमें जिसका log पता है। log always increasing function है, x increase log x increase, that is the meaning of increasing function. In this particular case 2 into log 10 मिलेगा। log 10 अपना कितना होता है 1 है, 2 into 1 कितना आता है 2। अगर हमें for example if I need, अगर मुझे log 1000 चाहिए, it is nothing but अपना कितना होता है log 10 power 3 होगा। log a power b को मल्टीप्लाई करो, a power b म्हणजे b log a, b log a power b का तो b log है, बेस कितना 10 है, log 10 कितना होता है 1 है, ऐसे। नेक्स्ट, अगर हमें चाहिए फॉर एग्जांपल if I need like this, मुझे इतना चाहिए था, कितना बताओ, log 3242 चाहिए था। तो आप ये नंबर को ऐसे स्प्लिट करो, आपको जिसका लॉग पता है। वी नो लॉग 10 to 1 to 10 के बीच में हमको पता है, हमें लॉग 1 to 10 के अंदर ही पता है कि नहीं है। इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे, हमें जिसका लॉग पता है, और दिस नंबर शुड बी 1 to 10, लाइज बिटवीन 1 to 10, ये 1 to 10 के अंदर होना चाहिए, राइट। इंटू हम लोग कितना करेंगे 10 power 3 करते हैं। यह अपना हुआ log a into b। log a प्लस log b होता है। अब इसका वैल्यू कितना है, ये log 3 से ज्यादा log 4 से कम है और log 3 को नजदीक है, बट अपना log 3 कितना है 0.4771 है, ये log 3 से थोड़ा ज्यादा है, इसको 0.5 समझो फॉर एग्जांपल। ये अपना कितना log 10 power 3 म्हणजे काय 3 log 10 है। log 10 कितना 1 है, ये पूरा कितना हो गया 3 है, 3.5 होता है। Coming to bit number 6, if I need for example log 0.00523, and this I can write like this, ये अपना होता है log, डेसिमल यहां लगाओ तो क्या मिलता है 1 2 3 4, 10 power -4 आता है। It is nothing but क्या होता log a into b, log a into b कहा तो log a plus log b, into a तो प्लस आता है।
एंड व्हाट इज log 5.23? इफ log 5 से ज्यादा है एंड log 6 से कम है और 5 को नजदीक है, log 5 का वैल्यू कितना है? व्हाट इज log 5? 0.6990 है। ये log 5 से थोड़ा ज्यादा, तो कितना करेंगे? 0.7 करो कि 0.71 करो, सब चलता है। 0.7 करो, 0.71 करो, देयर इज नो डिफरेंस, राइट? ये log 5 से थोड़ा ज्यादा मगर log 6 से कम है और log 5 को नजदीक है। ये log 5 को नजदीक है कि नहीं है? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये अपना होगा फॉर एग्जांपल नियरली 0.7 समझो, 71 समझो फॉर एग्जांपल, और ये कितना मिलता है हमको? ये हमको -4 मिलेगा। ठीक है, ये बता -4 कैसे मिलता है? ये हमको -4 कैसे मिलेगा? ये log 10 पावर -4 है, तो -4 इंटू log 10, log a पावर b का तो b log a, b log a, राइट? व्हाट इज log 10 इज 1, -4 इंटू 1 इक्वल्स टू -4 करो, तो यहाँ में कितना मिलता होता? माइनस कितना मिलेगा? 3.29 मिलता है। अगर हम इस नंबर का लॉग निकालना है, थ्री टू फोर थ्री टू नाइन 3 1 लाइक दिस, इसका लॉग निकालना है, तो इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करो, हमें जिसका लॉग पता है log 1 to 10, तो इस नंबर का हम लोग क्या करेंगे? ऐसे स्प्लिट करेंगे, ओके? हमें जो नंबर मिलेगा वो 1 to 10 के अंदर होना चाहिए, 1 to 10 के अंदर होना चाहिए, राइट? अब ये हमें कितना मिलता है? तो log 3.293 समथिंग आता है। बाकी सभी छोड़ो, पॉइंट का कुछ काम का नहीं है। 29 कितना होता? 32100 इंटू कितना करेंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ डेसिमल दिया है ना, यहाँ डेसिमल दिया है ना, तो कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 पावर 8 करो। ये अपना कितना होता? लॉग नियरली 3.3 करो इसको, ये हमें कितना मिलता है? log 3.3 मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलता होता? log 10 पावर 8 मिलता है, log 10 पावर 8 मिलेगा। log 3.3 कितना? log 3 से ज्यादा है, log 3 कितना है? 0.4771 है कि नहीं? इससे थोड़ा ज्यादा है तो कितना? 0.5 करो, 0.5 लिखो, 51 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 0.5 लिखो, 51 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये कितना? log 10 पावर 8 इज 8 log 10, 8 इंटू log 10, log 10 कितना? 1 है, प्लस 8 करो, ऐसा रहता है। ठीक है, and tomorrow we'll see anti-log and methods of plotting graph. अब मैं क्या करता हूँ? I'll give you some questions so that you please solve out. I'll give you some questions and that you please solve out. Find the log.
log 50 कितना होगा, log 60 कितना होता है, log 130 कितना होगा, log 140 कितना होता है, log 3000 कितना होगा, log 0.0032 कितना हो सकता है। ठीक है, ये निकालो। And tomorrow we'll come with the next part of your anti-log, with anti-log graphs, and then we can start with the topic, right? We'll stop here.